वो बिल्कुल हॉस्पिटल पहुंच गई है बिकॉज ऑफ दिस वेदर प्रॉब्लम। आई अंडरस्टैंड। Yes, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, आपके लिए एक मजे की बात ये है कि आप भी महक हो और एक और महक ने भी आज हमें ज्वाइन किया है। तो महक वन और महक टू पे डिवीजन करें या महक और महक फरहान पे करें? महक फरहान और महक पे ठीक रहेगा आई गेस। महक वन टू कंफ्यूजिंग हो जाएगा। okay, ma'am. राइट, ओके। ओके ओके। एंड महक, हाउ वाज योर डे? Ma'am, my day was very busy. ओके। I'm swamped व्हाट with my work. you were swamped with your work? Very good. Like, what was your day like? At what time did you wake up in the morning? I wake up 1 p.m. You wake up After at 1 p.m. You that, so lucky you are. When I was not married, I used to wake up at 1 p.m., 2 p.m. I used to wake up. I used to see like I was a night owl. चले आज का idiom भी हो गया night owl. Night yes, owl वो ma'am. होता है I'm जो रात को also लेट। night out. जी जी आपने So पहले I बताया was, था। अच्छा मैंने बताया था, ठीक है। So I was जी जी। never an early bird when I was unmarried. So I used to be a night owl. Right now I am an early bird. I have to wake up so early because of my kids. So this happens. So Okay. Yeah, right. Okay. So after that, you were swamped with your work. Was it yes, ma'am. personal work or some professional thing? My professional work for Vaya's business. I get up 1 p.m. After that, I eat my I meal got it. and I uh, ate my meal. Past tense. I Yeah. ate my Okay. meal and Right. then I went for the shop for my shop You went to the shop. Okay. to the shop. Okay. And how you, since you are a businesswoman, tell me, Yes, ma'am. is it difficult for a woman to be a businesswoman, or is it difficult for a No, woman ma'am. to do the It's job? Yes. no, Sorry. ma'am. It's I think it's very not difficult because if anyone support you, then Yeah. you can do anything. Yeah. That is. By anyone, what do you mean? Like who? Like your parents, your father. If your father support you, if your husband support you, then you do everything which you want to do. But let me tell you, you are very right. Obviously, we need this support. Yes. But I, not being a woman, I'm saying this because not because I'm a woman. But I believe ये जो potential है ना women के अंदर, लोग औरतों के अंदर जो potential जी है मल्टीटास्किंग की, ये ठीक है सपोर्ट से आती है लेकिन इनके अंदर इन बिल्ट होती है। आप कभी अपने आप को एनालाइज करें, लाइक व्हेन आई वाज नॉट मैरिड आई यूज्ड टू थिंक कि बच्चे घर जॉब ये मैनेज कैसे होता है। ये मल्टीटास्किंग विदाउट सपोर्ट के भी औरतें करती हैं। अल्लाह ताला ने औरत को मल्टीटास्कर बनाया है। जी जी मैम, वो बिल्कुल सही बात। अपनी सपोर्ट खुद निकाल लेती है, मतलब अपने लिए रास्ते खुद निकाल लेती है। दिस इज नहीं मैम, वो अ बात वुमेन्स बिल्कुल थिंग। सही है आपकी, लेकिन अगर घर में कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, जैसे कि अगर हस्बैंड शादी हो गई बंदे की, हस्बैंड सपोर्ट नहीं हाँ, करते, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। मुश्किल हो जाता है। और अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करे तो वो एक औरत कुछ नहीं कर सकती जब कोई अच्छी सपोर्ट उसके साथ ना हो तो। और ये पता है वन साइडेड नहीं होता, ये दिस इज फ्रॉम बोथ साइड्स। लाइक इफ वाइफ डजंट सपोर्ट हस्बैंड्स, तो हस्बैंड्स के लिए भी काम करना मुश्किल होता है। बहुत मैंने बहुत मुश्किल सारी होता है जी। एग्जांपल्स देखी हैं कि जहां पर वाइफ्स होती हैं क्रैंकी होती हैं, दे आर नॉट वेरी सपोर्टिव। वो हर वक्त घर की चीजों में उलझाए रखते हैं, जैसे हस्बैंड्स उलझाए रखते हैं घर के कामों में जो सपोर्ट नहीं करते, उसी तरह खवातीन जी भी जी। होती हैं जो उलझाए रखती हैं और उनको प्रोग्रेस करने का वो आगे मौका नहीं देती, वो बस घर की चीजों में ही फंसे रहते हैं। तो ये दोनों जी तरफ से जी। होता है। Yes, yes, you're very right. Thank you. And tell me something about customer dealing. How do you deal with the customer? या कुछ experience बताएं, कभी आपको कोई problem आई हो बहुत बड़ी तो try to यस speak in मैम। English and tell. Yeah, यस मैम, डीलिंग विद कस्टमर इज वेरी 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 डिफिकल्ट। yeah, I understand. Yes. यस मैम। Okay, tell me one difficulty that you face like every other day. I face many difficulties like this. Customer said that I want this abaya and I need Sam as it Sam, as shown as picture. Then we Right. try, we try our best and we मेरा मतलब कि हम कस्टमर को वही चीज प्रोवाइड करते हैं। हाँ हाँ, ट्राई करें। नहीं नहीं नहीं, बोलती जाए, कोई बात नहीं। टांगे तोड़ेंगी तो मैं जोड़ दूंगी, बाजू तोड़ेंगी तो मैं जोड़ दूंगी, मेरा काम है We यही। provide ट्राई। same as shown is picture, but after राइट। receiving the abaya, customer says, "No, this is not in size. This size is very."
क्या कहते हैं उसको? This size is very awkward. नो, मेरा मतलब कि फिटिंग में आ रहा है। अच्छा, so fitting problems are there. हाँ, Yeah, fine, हाँ, fine. फिटिंग प्रॉब्लम्स। एंड देन जो सेम भी होता है ना, फिर भी वो कहती है नहीं, इसमें कुछ ना वो जानबूझ नुकसान के, नुक्स हाँ। निकाल लेती हैं, जानबूझ के, कि नहीं ये हो गया, नहीं वो हो गया। तो ये सारी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, फिर वो वापस भी करती हैं, फिर कहती हैं कि साइज सही करवा के दें। तो और आपका, सॉरी टू ऑफेंड द लेडीज हियर, अगर कोई ऑफेंड हो, आपका तो मसला भी ये है ना कि आपने करना भी खवातीन से डील है, तो खवातीन से डील करना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे आई बड़ा चैलेंज होता है, और ज्यादातर तो बिलीव। वो आगे इस बात पे होते हैं कि पेमेंट हम नहीं करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि हमारा हाँ, जो प्रोसेस है वो ऑल ऑनलाइन पेमेंट का है। तो राइट राइट, थैंक यू महक, थैंक यू फॉर द थॉट। अस्सलाम वालेकुम आयशा, हाउ आर यू? Walaikum Assalam. I'm fine. And you? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ वाज योर डे? My day was busy because I was अच्छा, आपका शायद completed. इंटरनेट का इशू है आयशा, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। अच्छा, हम लोग सईदा पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईदा, हाउ आर यू? Walaikum assalam. I'm fine. And what about you? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ वाज योर डे? Like always, busy. As always? Okay. Right. So you were swamped. Right. Okay. Okay, Saida, you are like a teacher, if I'm not wrong, right? You are a teacher? Teacher. Yes. Okay. Okay. Tell me, what difficulties do you face as a working woman, as a teacher, at your workplace, in your personal life, if you are comfortable to tell me? Tell me, what is the difficult thing for a woman to be a working woman? Um, Management of work, management between work and home is very difficult. If you Okay. manage everything, you can successful. But if you don't manage your home or your work, Yeah. difficulties बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्टीज जो है वो इसमें फिर बढ़ जाती हैं अगर हम मैनेज ना कर पाए तो। Okay. राइट, इसमें मैं आपको एक वोकेबलरी भी दे देती हूँ, बल्कि ये साइकोलॉजिकल एक फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। ये है वर्क लाइफ बैलेंस के, जो वर्किंग लेडीज हो या मेरा ख्याल है जेंट्स भी हो, किसी की भी बात हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर वी हैव टू, वेयर वी आर केपेबल, हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि हम काम को और लाइफ को बैलेंस कर सके। तो आप जो कह रही हो उसमें यही है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द वर्क लाइफ बैलेंस, राइट? यस। Okay, so how do you manage this? I woke up Because you have kids also, जी। right? You have kids I also. You also have three kids, right? I have three Yeah. kids. So you are a Uh, mother, you are a wife, you are a daughter-in-law, you are a working woman, you are a teacher. How do you manage these roles? Sometime I feel कि I don't manage every role. सब Okay, okay. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं हर तरफ नहीं जो है वो कामयाब हो पा रही हूँ, और उसमें अब मैं स्टूडेंट भी बन गई हूँ, तो एक और जो है वो मेरी लाइफ में ये जो चीज But आ गई, मुझे उसके लिए मैं थोड़ी सी ज्यादा परेशान होती हूँ। टीचिंग मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मगर right. एज ए स्टूडेंट बनना मेरे लिए, मैं क्योंकि आफ्टरनून में भी मैं जो है वो अपना दर्स वगैरह लेती हूँ, मदरसे जाती हूँ, तो उसके लिए जो है मुझे काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो होमवर्क्स बहुत होते हैं होमवर्क, तो वो करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। Okay, so you get a lot of homework, right? Okay. Okay, tell me, as a mother, do you think it is difficult to be a working woman, or as a mother, you think it is good for a woman to work? Being a mother, Yeah. sometimes difficult and sometimes easier. Okay, okay. If you have to give the credit of your success and job, because you're successful,
Success doesn't mean कि आप prime minister बन जाए. Success means that you are having different roles and you are playing every role, right? So whom you would like to give the credit for these so many roles that you are playing in a day? For my किसको husband. credit दे? To your For my husband. Okay. So how does he support you? Sometimes I'm not manage my home. Sometimes I don't cook at home. Okay. Yeah, And these are very normal things. Yeah, he will yeah. manage how to मतलब मेरी बहुत ज्यादा थकन भी जब हो जाती है, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, तब भी जो है वो मुझे टैकल कर लेते हैं. बहुत ज्यादा उनका रोल है इसमें. अगर उनका साथ ना हो तो मेरा ख्याल है मैं कुछ भी नहीं कर सकती. मुझे लगता है मैं घर के काम भी नहीं कर सकती अगर मुझे उनका साथ ना मैसर हो. राइट, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है. ओके सईदा, थैंक यू सो मच. जी इरम, yes इरम, टेल मी समथिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. आर यू वर्किंग इरम? I just teach madrasa students. Okay, you teach madrasa students. Are you married? No, unmarried. Okay. How do you think you have work life balance? It's difficult because it's not easy for every woman. Because it's important. Because जो अभी जो life चल रही है, it's very Yes. important to become independent. Yes, I agree. Okay, so you are teaching, you are a teacher. Okay, so as a teacher, because teaching is a very noble, every profession is very noble, but teaching is, I call it a noble profession because you have so many people attached to you and their futures depend on you. तो ये आपको एक nobility की तरफ लेके जाता है. टीचिंग ने मुझे बहुत सिखाया as a person, how to be calm, how to be patient, how to be sympathetic and empathetic towards people. उनकी बात सुनना, चीजों को like to provide an emotional support to the students like your family members is something challenging. What have you learned about, like, from your teaching profession? What have you learned? Lots of work I have teach because I don't know how to sit with children because Montessori students are very little. Yeah, they're very yeah, they're very like Montessori students are very young. Yeah. Yes. तो उनके साथ बैठना, उनसे उनको समझाना, it's very difficult. So What is the ये biggest challenge to deal with the Montessori students, according to you? उनको चीजें लर्न करवाना To बहुत make difficult. them learn things. Okay. So how do you make them learn things? What is your formula for this? जैसे अगर मैं कोई एक चीज करा रही हूँ तो मेरा है अच्छा, कि मैं इंग्लिश में जवाब देना है. इंग्लिश में जवाब देना है. टूटा फूटा नहीं, लेकिन इंग्लिश में देना है. Yes. my For first example, priority my yeah. first priority is to teach one thing repeatedly until and Okay. unless the student catch it up. That's very good. So you believe in repetition. Yes. Then I Okay. ask individually that Yeah. you should speak. Then you, if someone gets like stuck, I would say I will. मैं आपको Yes. बाद में दोबारा सिखा दूंगी. मैं आपको वापस से पढ़ा दूंगी. I'm sorry. I'm very weak in English. No problem. I understand. At least you are trying. That is a good thing. Okay, so you tell them that I will clarify the things again and again, right? Yes. Okay. Do you think you successfully, like this formula is successful? Because they are too young and too small. Um, Yeah. so that's fine. बहुत मुश्किल होता है लेकिन करना पड़ता है, बहुत छोटे हैं तो. Right. Okay. Thank you so much. कौन था हमारे साथ? इरम. Thank you, इरम.
ओके। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था, द पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट यू थिंक मैचेस माय पर्सनालिटी। मैं एक एक करके आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है इनमें से, अभी तक जितनी आपने क्लासेस, अभी तो खैर तीसरा हफ्ता है, बट स्टिल व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज डोमिनेंट इन माय पर्सनालिटी। आपने पहले ये बताना है, उसके बाद आपने रीजन देनी है कि आपको ऐसा मेरे बारे में क्यों लगता है। कोई भी पॉलिटिकल आंसर नहीं देगा, आई वांट ऑनेस्ट आंसर्स, ओके? राइट। और अगर कोई मुझे कुछ सजेशन देना चाहे, आई वुड लव टू हियर दैट। ओके, वी विल स्टार्ट विद सईदा। I think you are calm-minded and open-minded. How you have felt that? Because you listen my ideas. You are a teacher. You have different ideas to teach, and you are experienced. But I am giving you some ideas, and you agree with this that side. Yes. And calm-minded. Uh, Sometimes somebody not get your point of view, yeah, your lesson, so you can Yeah. repeat calmly. Right, right. Thank you so much, Saida. Thank you very much. That is kind of you. Aisha. Yes, Aisha. I think you are helpful. Thank you. Right. And Mm, helpful because we have a lot to learn from you. okay, okay. What is the different thing that you have learned so far? अभी तक आपने मेरे से ऐसी क्या चीज सीखी है जो आपको बहुत डिफरेंट लगी है या बहुत आपको अट्रैक्ट की है? For our lesson and everything. Everything. That is very kind of you. Thank you. Right. Okay. अच्छा, F Khan. Okay. Is it a boy or a girl? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. F Khan के नाम से. Who's there? This is someone new. Okay. Mic is off. Right. Mehak. Yes, Mehak. I would love to hear something from you. Ma'am, I think you are calm-minded and open-minded too and helpful. Thank you. Why do you think I'm like that? When you listen everything which we ask you with calm-minded. So Calm-mindedness. Okay, okay, yes, ma'am. okay. Thank you, Mehak. Iram. जी, Yes. Which personality trait you think I have? you have both personality, open-minded and helpful, because I always think whenever I get stuck or others stuck, you always say just continue, I will help you, I will join your sentence. So that's why I just think you are open-minded as well and helpful. Thank you, Iram. Thank you so much. Thank you. Right, okay. अच्छा, क्योंकि अभी हम लोग सब इकट्ठे हो गए, तो आई वुड लाइक टू मेंशन समथिंग। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, अक्सर कभी आप देखते होंगे कि क्लास 8 बजे हो रही है, कभी 8:30 बजे हो रही है, जिसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मैम ज़ाहरा। शी ऑलवेज कोऑपरेट्स। एक्चुअली प्रॉब्लम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा ब्रिटिश काउंसिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें मुझे आइल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके स्पीकिंग टेस्ट लेने होते हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आपको पता होगा, कभी किसी कंट्री में कोई टाइम होता है, किसी कंट्री में कोई टाइम होता है। तो उनका तो, ब्रिटिश काउंसिल का तो एक प्रॉपर टाइम स्केड्यूल होता है, लेकिन हर कंट्री के हिसाब से उनका ना नया स्केड्यूल आता है। तो वो फिर एग्जामिनर से शेयर करते हैं, जिसमें हमने फिर कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू स्टूडेंट से स्पीकिंग इंटरव्यू देने होते हैं। तो कल जैसे 8:30 क्लास थी, बिकॉज 9 बजे था मेरा इंटरव्यू लेना था मैंने, और आज मैंने 8 बजे रखी क्योंकि 8:40 पे मैंने एक इंटरव्यू लेना है। तो ये आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मैम ज़ारा अगेन, बिकॉज शी कोऑपरेट्स। उनको पता है, ये मैंने उनको शुरू में बताया था, और वेरी काइंडली शी सेड नो प्रॉब्लम, हमें आप हेल्प करें एक्सपर्टीज शेयर करने में, टाइम का हम लोग कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, विच आई रियली अपोलोजाइज फॉर।
कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं टाइम लैप्स की वजह से हमारा टाइम और उनका टाइम मैच नहीं होता, और क्योंकि ये एक ऐसी सेंसिटिव चीज़ है आइल्स का एग्ज़ाम कि ये फिर लेना भी पड़ता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट में जब हम होते हैं तो उसका हमें फिर वो मतलब रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है। आपका टाइम भी मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, लेकिन ये थोड़ा सा बस ये इंटरनेशनल टाइमिंग की वजह से मेरा इशू हो जाता है। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। ये टाइम का थोड़ा सा मसला है, मैंने कहा मैं क्लैरिफाई कर दूं। अच्छा, हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस। एक मिनट, राइट, सॉरी नॉट पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, because we have discussed present tense, past tense, we will discuss future tense. When we will be done with future tense, we will be done with all the tenses, present, past, future. जब हम ये सारे कर लेंगे, मैं उसके बाद आपको एज अ होमवर्क फॉर द वीकेंड आई विल असाइन यू, लाइक आई विल गिव यू अ लिंक इन द ग्रुप। मैं ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगी, वो एक क्विज है, ऑनलाइन क्विज, ठीक है, वो सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट से है। तो उसमें क्विजेज हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमने डिस्कस किए थे। एट पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस और वो सारे वर्ब्स, नाउन्स, उससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन आज क्योंकि फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर टेंस हो जाएगा तो टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अभी मैं टेंसेस का क्विज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने करना ये है, आपने वो क्विज अटेम्प्ट करके उसका जो रिजल्ट आएगा, जो स्कोरिंग होगी आपकी, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ग्रुप में आप सब ने अपने अपने स्क्रीनशॉट मेरे से शेयर करने हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या लर्न किया और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आप लोगों का वीकेंड पे होमवर्क होगा। अगर किसी को लिंक ओपन करने में या समझने में प्रॉब्लम आए, वो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकता है, आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो कल है थर्सडे, कल फिर फ्राइडे को हमारी नहीं होगी क्लास, तो फ्राइडे को मैं लिंक शेयर करूंगी, और सैटरडे और संडे तक फिर आप लोग अपने रिजल्ट्स मुझसे शेयर करेंगे। ओके, 1 minute, let me share the screen for this. Okay, so here we go. This is future tense. अगर किसी को स्क्रीन नजर नहीं आ रही, प्लीज रेज योर हैंड। और ये ओके, नो रेजिंग हैंड, ओके। फ्यूचर टेंस, अच्छा, फ्यूचर टेंस यानी कि मुस्तकबिल का जो टेंस होता है वो है। तो इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट होता है एज यूजुअल, उसके बाद हम विल लगाते हैं, वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, और एंड पे आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रिमेन द सेम, ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज द सेम, सिर्फ अब इसमें विल ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बाय अ न्यू कार, वो नई कार खरीदेगा, ठीक है। शी विल विजिट पेरिस नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल पेरिस विजिट करेगी। ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए पढ़ूंगी, ठीक है, तैयारी करूंगी। ओके, फ्यूचर प्रोग्रेसिव जिसको कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं, इसके लिए वही बात कि वर्ब के साथ जेरेंड लगता है। बाय जेरेंड आई मीन आईएनजी, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके आगे आईएनजी लगाते हैं, सब्जेक्ट वहीं पर रहता है, विल के साथ बी आ जाता है, तो विल बी, ठीक है। आई विल बी स्टडिंग टुमारो, मैं कल पढ़ूंगी, ये तैयारी करूंगी। शी विल बी वर्किंग लेट, वो देर तक काम करेगी। ही विल बी कुकिंग डिनर, वो खाना बनाएगा। ये कॉन्टिन्यूस टेंस है फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं हम, कॉन्टिन्यूस से प्रोग्रेसिव। तो इसमें वर्ब और आईएनजी, जिसको जेरेंड बोलते हैं आईएनजी को, वो सेम है, सब्जेक्ट की जगह सेम है। जैसे सिंपल टेंस में विल आया था, इसी तरह इसमें भी आएगा, आगे विल के आगे ऐड कर देंगे बी, और वर्ब के साथ ऐड कर देंगे जेरेंड, ठीक है, जिससे कि प्रोग्रेसिव टेंस बन जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस की बात आएगी, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वर्ब के आगे जेरेंड लगेगा, आईएनजी लगेगा हर सूरत, ठीक है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट,
कोई काम जो फ्यूचर में परफेक्टली शुरू हो और वो फ्यूचर में परफेक्टली शुरू होगा और फिर वो मतलब उस अपने उसमें पाया तकमील पर पहुंचेगा। क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट वहीं पर है, विल के साथ शेल, विल या शेल। हमने कल मॉडल वर्ब्स किए थे, ठीक है। वो आप मॉडल वर्ब आप देखेंगे कि आपने कौन सा लगाना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर आगे हैव आएगा और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। फर्स्ट नहीं आएगी, सेकंड नहीं आएगी, थर्ड आएगी, ठीक है। ईट, एट, ईटन, तो ईटन आएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी। ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ही विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका होगा, फ्यूचर, ठीक है। प्रोग्रेसिव, अब प्रोग्रेसिव फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो प्रोग्रेसिव के लिए सर शर्त वही है, वर्ब के आगे आईएनजी। परफेक्ट के लिए विल हैव था और बी लगा देंगे हम साथ इस केस में। विल हैव तो आपने देख लिया परफेक्ट में था, और आगे यहाँ पे ऐड हो गया बीन, इसको प्रोग्रेसिव परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट की जगह वहीं पर है, ठीक है। तो दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे, वो सारा दिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि शुरू करेंगे और ये नहीं कि शुरू करने के बाद रोक देंगे, शुरू हो गया, परफेक्ट हो गया, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसमें विल हैव बीन। आई विल नॉट हैव बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली फॉर अ मंथ, मैं एक महीने के लिए एक्सरसाइज शुरू नहीं कर रही होंगी। 2 महीने के लिए कर सकती हूँ, 2 महीने के लिए ये काम हो सकता है, 3 के लिए हो सकता है, लेकिन 1 महीने के लिए नहीं। तो ये है हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव। ओके, आई विल टेक द क्वेश्चन नाउ। किसी का कोई क्वेश्चन? आप प्लीज माइक ओपन कर दीजिएगा ताकि स्क्रीन यहीं पर रहे। माइक ओपन करके मुझसे पूछ लें क्वेश्चन। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है जी जी। कि सिंपल फ्यूचर में ना विल के साथ शेल नहीं लगेगा। वो आप मॉडल वर्क कल करवाया था, आप थी क्लास में कल? जी जी थी। हाँ, अच्छा, मॉडल वर्ब है ना शेल, तो वो डिपेंड करता है कि फिर आप मॉडल वर्ब को, मॉडल वर्ब का यूज ही यही होता है कि कोई पॉसिबिलिटी या नेसेसिटी, कोई काम जो मुमकिन हो या आप जरूरी हो, उस सिचुएशन में मॉडल वर्ब फिर आप फ्यूचर टेंस के हिसाब से यूज करते हैं। शेल फिर मॉडल वर्ब में आ जाता है। अच्छा, इसका हेल्पिंग जो फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ विल ही है फ्यूचर सिंपल का? अच्छा, फ्यूचर सिंपल की बात करें, सॉरी मुझे लगा परफेक्ट की बात करेंगे। नहीं ओके, नहीं, फ्यूचर। फ्यूचर नहीं नहीं, इसमें विल, आई विल विजिट पेरिस नेक्स्ट ईयर, आई शेल विजिट पेरिस नेक्स्ट ईयर, वो फिर मॉडल वर्ब में आ जाता है। मॉडल वर्ब हम तब यूज करते हैं जब कोई पॉसिबिलिटी या नेसेसिटी हो, लेकिन क्योंकि ये सिंपल टेंस है, इसमें मॉडल वर्ब यूज नहीं होता। अच्छा, तो बस इसका हेल्पिंग वर्ब जो विल ही है, इसके में सिंपल टेंस में सिर्फ विल आएगा। और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में भी विल बी शल भी नहीं होगा? वो शेल बी, अगेन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। आई वुड बी गोइंग टू लाहौर, तो वो अगर आपको पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने आपको कल मॉडल वर्ब्स बताए थे, वो वुड आप तब यूज करेंगे जब आपको लग रहा होगा कि पॉसिबिलिटी है। यू शेल गो टू लाहौर, अब वो शेल जो है वो डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन पे, कि बात क्या करनी है आपने। वरना सिंपल सीधी सीधी प्लेन बात करनी है कि तुम लाहौर जाओगे, तो फिर आप उसको सिंपल विल, यू विल बी गोइंग टू लाहौर है। मॉडल अच्छा वर्ब ठीक। हम लोग तब यूज करते हैं जब जुमले में या बात में हमने कोई पॉसिबिलिटी, यानी कि जो मुमकिनात होती हैं, या कोई नेसेसिटी, किसी चीज की जरूरत होती है, तो उस सूरत में हम मॉडल वर्ब लेके आते हैं। अदरवाइज सिंपल बात करनी है तो सिंपल विल आता है, विल या विल बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, आई एम हैप्पी के क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब क्लियर है। ओके, राइट। आज के होमवर्क के लिए again there would be a vocabulary thing for tomorrow, but a different one. अच्छा, ओके, ये कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। स्टोन हार्टेड, पत्थर दिल। इमोशनल मैनिपुलेटर, जो चीजों को, आपकी फीलिंग्स को ट्विस्ट करता है, चीजों को घुमाता फिराता है, दूसरों की फीलिंग्स को। खास तौर पे कोई हंस रहा है तो वो कहेगा नहीं नहीं हंस, रो रहा है तो कहेगा नहीं नहीं रो नहीं रहा,
वैसे उसकी आंखों में से पानी आ रहा है। ये होते हैं इमोशनल मैनिपुलेटर। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि चीज को बदल देना, अपने अपने मतलब के हिसाब से बात को या चीज को बदल देना, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। बाउंड्री ब्रेकर वो लोग जो हदूद का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, लिमिट्स का और चीजों का, उसको हम बाउंड्री ब्रेकर कहते हैं। हिडन कंपेटिटर वो इंसान जो अंदर से हासिद होता है, जेलस होता है, आपकी चीजों से हासिद करता है उसको, और शो नहीं करता, अंदर से होता है, ठीक है, ज्यादातर हिडन होते हैं कंपेटिटर्स। मूड अटैकर जो आपके अच्छे भले मूड को खराब कर देता है। स्वीट टॉकर जो मीठा बनता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। ब्लेम शिफ्टर जो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, उल्टा ब्लेम आप पर शिफ्ट कर देता है। ड्रामा मैग्नेट ऑलवेज क्रिएट्स ड्रामा, वो जो हर वक्त ड्रामेबाजी में बिलीव करते हैं लोग। एनर्जी ड्रेनर लीव्स यू एग्जॉस्टेड, वो इंसान जो आपके अंदर से एग्जॉस्ट, एनर्जी ड्रेनर तो वैसे बच्चे होते हैं माशाल्लाह हमारे यहाँ, जो हमारी सारी एनर्जी को ना बिल्कुल खत्म कर देते हैं, तो एनर्जी ड्रेनर। अच्छा, इसमें आपने मुझे बताना है स्टोरी, आपने एक स्टोरी बनानी है 4 लाइंस की, 4 लाइंस होनी चाहिए स्टोरी की, जहां पर आपका पाला किसी ऐसे इनमें से किसी पर्सनालिटी ट्रेट वाले बंदे से पड़ा हो या पड़ता हो, ठीक है। उससे रिलेटेड आपने बताना है कि आपने ये जो पर्सनालिटी ट्रेट पिक किया है उस बंदे के लिए, उस बंदी के लिए, वो आपने क्यों किया, ऐसा क्या हुआ जहां पे आपको ये लगा कि ये बंदा स्टोन हार्टेड है, इमोशनल मैनिपुलेटर है, एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है। वो आपने फिर मुझे उसके साथ स्टोरी बता के बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, ये ओपिनियन आपकी क्यों है उस शख्स के बारे में, ठीक है। तो अभी मेरा वो इंटरव्यू का 2 मिनट रह गए, आई जस्ट नीड टू प्रिपेयर सम ऑफ द थिंग्स। अगेन आई अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस, थैंक यू टू मिस जारा जो कोऑपरेट करती हैं, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग भी कोऑपरेट करते हैं। इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। अगर इससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो इन पर्सनालिटी ट्रेट से रिलेटेड, आप मुझे वॉइस नोट कर दीजिएगा ग्रुप में, और सब माइक खोल के एक दफा मुझे अल्लाह हाफिज कर दें बिफोर आई लीव। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am. अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आयशा, इरम, मैम ज़ारा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।